Welcome students. So today I am here to again start a new chapter of class 11th. So in class 11th we already completed up to a principle of accounting. So we discussed all principles of accounting. So now today we are going to start a new chapter which is known as accounting equation. Clear? So basically, accounting equation is a formula, is equation which proves that both two sides of accounts are always be equal. Clear? So what is the accounting equation? So accounting equation which is based on dual aspect concept. Dual aspect concept means assets equals to capital plus liability. Clear? So it is a accounting equation. So this equation always be equal. Means any transaction which is recorded in accounting, it always make this equation equal. Means assets equals to liability plus capital. As you all know about the capital, so capital is a amount which is paid by or invested by the proprietor, but this capital is treated as a firm. By the firm, it is treated as a liability because firm is responsible to pay interest, to provide, to earn profit, to pay profit to the proprietor and owner on their investment, which is known as capital. So the amount which is taken from the proprietor or the owner means a firm amount taking from the owner or proprietor is known as capital, but amount which is taken from the outsider person, a financial help or the future payments which are taken from the outsider of the firm, means these are the not member, these are not proprietor, so that amount is always be treated as a liability. Clear? So any amount borrowed from the outsider person is treated as a liability. So we have to prove this equation, assets equals to capital plus liability. So now today we are going to study about how to prove this equation equal. Clear? तो बेसिकली हम इसमें देखिए सीखेंगे कैसे. यहां पे हमें ये ध्यान रखना है, इसको पूरा समझने के लिए इस वीडियो के एंड तक जाना है. क्लियर? अगर हम वीडियो के एंड तक जाएंगे तो हम इसको इजीली समझ पाएंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कैसे हम इसको इक्वल प्रूफ करते हैं और किस ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होता है. तो देखिए, हर ट्रांजैक्शन का अलग इफेक्ट है और हर ट्रांजैक्शन हमेशा दो जगह इफेक्ट करेगी. यही हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट two sides, one is debit and other is credit. Clear? So every transaction make this equation equal. Clear? So we have to know what are the effects of each and every type of transaction. Clear? So with the example, with the help of example, I am going to provide you information related to how to equalize this equation, how to prove this equation एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. क्लियर? तो इस इक्वेशन को कैसे हमें इक्वल प्रूफ करना है, ये मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा जिससे आपको इजीली समझ में आए कि किस तरह की ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होता है. क्लियर? तो देखिए, अब हम एक न्यूमेरिकल समझने वाले हैं जो कि हमारा एग्जाम्पल बेस्ड है और इससे आप अगर आप इस न्यूमेरिकल को पूरा समझ लेते हैं, पूरा इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आप पूरी तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं. क्लियर? तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और समझ जाएं कैसे करना है अकाउंटिंग इक्वेशन को. क्लियर? तो देखिए, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं तो हम कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं. क्लियर? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हमारा फॉर्मूला है. इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमने एक फॉर्मेट बनाया. क्लियर? तो देखिए, फॉर्मेट में कुछ चीजें कॉमन है जो हमेशा होती हैं. क्लियर? सबसे पहली चीज ट्रांजैक्शन. आप यहां ट्रांजैक्शन लिखिए, ट्रांजैक्शन नंबर डालिए. क्लियर? तो जैसे कि हमने यहाँ पे, हमारे पास बोर्ड छोटा है, जगह ज्यादा नहीं है, तो मैंने केवल ट्रांजैक्शन नंबर लिखा है. क्लियर?
और जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, मैंने बहुत कम कम स्पेस दिया है क्योंकि मेरे पास बोर्ड में उतना स्पेस नहीं था। तो चलिए देखिए, एक सबसे कॉमन चीज क्या है, कैश। कैश, कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन का, कैश का होना कंपलसरी है। क्लियर। दूसरी चीज स्टॉक, भैया बिजनेस कर रहे हैं तो स्टॉक का होना कंपलसरी है। तो ये दो जो कॉलम है ये आपके कॉमन है, ये क्वेश्चन में बनने ही बनने हैं। बाकी के कॉलम जो है स्टॉक के बाद के ये जो 3 कॉलम बने हैं, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आती है तो हमें उसको रिकॉर्ड करना है। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं कैपिटल। ये भी हमारा एक कॉमन कॉलम है जो कि हमेशा रहेगा क्वेश्चन में। क्लियर। फिर लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लायबिलिटी में हमें कुछ क्लियर नहीं है। क्लियर। तो लायबिलिटी का हम कॉलम चाहे तो एक क्रेडिटर बना के छोड़ दें, चाहे हम कुछ भी ना बनाएं। क्लियर। तो देखिए ये हमारा एक जनरल फॉर्मेट है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखिए हमारे पास जो आपकी स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, उस क्वेश्चन में जो पहली ट्रांजैक्शन है वो क्या कह रहा है, सोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड मशीनरी ₹40,000। मींस वो क्या कर रहा है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। कमेंस मींस स्टार्ट करना, कमेंस्ड का मतलब ही होता है बिजनेस को स्टार्ट करना। तो कैसे स्टार्ट कर रहा है, विद कैश 1 लाख रुपए और मशीनरी 40,000 की, यानी वो कैश भी लेके आ रहा है बिजनेस में, 1 लाख रुपए लगा रहा है और 40,000 की मशीनरी भी ला रहा है, तो दोनों एक साथ लगा रहा है। क्लियर। तो टोटल बिजनेस में वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 1,40,000। क्लियर। तो देखिए सबसे पहली चीज वो कैश के फॉर्म में लाया, तो पहली ट्रांजेक्शन है हमारी कि वो कैश में 1 लाख रुपए लाया। तो पहली चीज तो कैश में गया 1 लाख रुपीस। क्लियर। दूसरी चीज वो मशीनरी ला रहा है 40,000 की, तो मशीनरी इज एसेट्स। तो एसेट्स साइड में ये है ना इक्वल्स टू के इधर एसेट्स है, तो एसेट्स में हम एक कॉलम बनाएंगे मशीनरी का। तो ये देखिए ये हमारा किसका कॉलम है, मशीनरी का। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं बता दे रहा हूं आपको कि ये मशीनरी का कॉलम है। क्लियर। तो यहां पे आपकी मशीनरी आ जाएगी कितने की, 40,000 की। क्लियर है यहां पे। चलिए तो देखिए जो भी हम पैसा बिजनेस में स्टार्टिंग में लगा रहे हैं या कोई भी सामान लगाते हैं, उसी का सम टोटल क्या होता है, कैपिटल। जैसा कि हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी स्टार्टिंग में ही कि व्हाट इज कैपिटल, कैपिटल इज अ सम टोटल ऑफ एनीथिंग और कैश which is invested in business are known as capital. Clear? So it is a sum total of all things and cash which are invested in business for starting a business. तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने कैश लगाया 1 लाख रुपए और 40,000 रुपए की हमने मशीनरी लगाई। क्लियर। तो टोटल हमारे पास जो कैपिटल आती है वो कितने की है, 1,40,000 की। क्लियर है यहां पे, किसी को डाउट। चलिए तो ये हो गया हमारा पहला ट्रांजेक्शन। बाकी के ट्रांजेक्शन बाकी के कॉलम्स में हमें कुछ नहीं डालना। क्लियर, वो ब्लैंक रहेंगे। चलिए देखिए अब इसके बाद देखिए हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है। सेकंड ट्रांजेक्शन कह रहा है, स्क्रीन पे आप देखिए, गुड्स परचेज फॉर ₹30,000। हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया है। तो देखिए जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, गुड्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टॉक। जो भी सामान हम खरीद रहे हैं वो बेचने के पर्पज, गुड्स तो हम उसी को कहते हैं, जो भी चीज बेचने के पर्पज से खरीद रहे हैं उसी को हम गुड्स कहते हैं, और वही हमारा क्या होगा, स्टॉक। क्लियर। तो जो भी गुड्स हम खरीद रहे हैं, 30,000 रुपए गुड्स खरीदा, इसके साथ कहीं भी आगे पीछे ऐसा कुछ मेंशन है कि कैश पे या क्रेडिट पे, कुछ भी नहीं मेंशन है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि ये गुड्स कैश पे परचेज किया गया है। जब तक क्रेडिट वर्ड का यूज ना किया जाए या किसी पर्सन का नाम यूज ना किया जाए तब तक आप ये समझेंगे कि वो ट्रांजैक्शन कैश में ही की गई है। जैसा कि इस ट्रांजैक्शन में आपने देखा, गुड्स परचेज फॉर ₹30,000, यानी 30,000 रुपए में आपने गुड्स खरीदा, यानी आपने कैश पे परचेज किया। क्लियर। दूसरी ट्रांजैक्शन कि आपने गुड्स खरीदा 30,000 का, तो पहली चीज तो आपके पास स्टॉक आएगा 30,000। क्लियर। दूसरी चीज खरीदने के लिए पैसे दिए, हमारे पास से कैश गया बिजनेस से, तो हमारा कैश डिक्रीज होगा। क्लियर। तो देखिए कैश जब हमारा डिक्रीज होगा तो 30,000 कैश कॉलम में से माइनस होगा। क्लियर। तो माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं। माइनस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा दूसरी ट्रांजैक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हर ट्रांजैक्शन दो इफेक्ट कर रही है। पहली वाली ट्रांजैक्शन का भी देखिए यहाँ पे एक साइड इफेक्ट किया, एक यहाँ इफेक्ट किया, ये ट्रांजैक्शन भी दो जगह इफेक्ट कर रही है। क्लियर।
तो हर ट्रांजैक्शन दो जगह इफेक्ट कर रही है। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कि इसको आगे हम कैसे अब कंटिन्यू करें। तो जैसे कि आप लोग अपनी बुक्स में देखते होंगे कि वहां पे न्यू इक्वेशन बनाता है, तो आप चाहे तो इसके न्यू इक्वेशन बना ले, फिर थर्ड ट्रांजैक्शन करें। ठीक है? उससे क्या होता है कि साथ के साथ कैलकुलेशन होती चली जाती है। क्लियर? आपको लास्ट में अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो मैं बता देता हूं कि न्यू इक्वेशन के थ्रू हम कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने क्या किया, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। क्लियर? और मैंने एक न्यू इक्वेशन बनाई कि अब आपका इसमें से 1 लाख में से 30,000 माइनस हो गया, कितना बचा? 70,000। क्लियर? ये 30,000 ही रहेगा, ये आपका 40,000 ही रहेगा। क्लियर? यहाँ पे डैश और ये 1,40,000 रहेगा। क्लियर? और कुछ नहीं। क्लियर? तो ये न्यू इक्वेशन बन गई हमारी। क्लियर? तो इसको हम कह सकते हैं क्या? न्यू इक्वेशन। NE हमने शॉर्ट में लिख दिया। क्लियर? अब चाहे तो आप न्यू इक्वेशन ना बनाएं, पहले सारी ट्रांजैक्शन कर लें, फिर कैलकुलेट कर लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसी है। क्लियर? तो देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, बट मैं इसको यहाँ पे अभी हर जगह नहीं करूंगा क्योंकि इससे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, बोर्ड पे हमारे पास जगह कम बचेगी। इसलिए मैंने केवल फर्स्ट स्टेप में करके दिखाया है, उसके बाद अब मैं नहीं करूंगा। क्लियर? तो देखिए, थर्ड ट्रांजैक्शन आपकी क्या कह रहा है। थर्ड ट्रांजैक्शन कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम विजय फॉर ₹60,000। हमने क्या किया? गुड्स परचेज किया विजय से। अब देखिए यहां पे क्या, पर्सन का नाम गिवन है। जब भी किसी भी पर्सन का नाम मेंशन कर दे किसी भी चीज को खरीदने या बेचने में, तो जिस भी पर्सन का नाम मेंशन कर रहा है उस पर्सन से, इसका मतलब हमने क्रेडिट पे परचेज किया, क्योंकि यहां पे कैश वर्ड तो यूज किया नहीं गया। अगर पर्सन के नाम के साथ हम कैश वर्ड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? कैश वर्ड का, तब तो वो ट्रांजैक्शन कैश में पे की गई है। लेकिन यहां कैश वर्ड का यूज नहीं किया गया, केवल पर्सन का नाम है। इट मींस कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में की गई है, यानी आपने उधार पे सामान को खरीदा है, क्रेडिट पे परचेज किया है। तो चलिए, आपने गुड्स परचेज किया 60,000 का, तो पहली चीज तो आपका स्टॉक ऐड हो जाएगा 60,000 का। क्लियर? दूसरी चीज, उधार पे खरीदा, क्रेडिट पे, तो जब भी आप क्रेडिट पे परचेज करें तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। भाई आपको इन फ्यूचर तो वो पैसा देना है ना उसको वापस, तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कहां जाना चाहिए? लायबिलिटी साइड में। और जिस पर्सन से हम उधार पे खरीदते हैं सामान, वो पर्सन हमारा क्या होता है? क्रेडिटर होता है। क्लियर? तो ट्रांजैक्शन कहां ऐड होगी? जाके क्रेडिटर में। कितना? 60,000। क्लियर? तो ये हो गई एक ट्रांजैक्शन हमारी। क्लियर? चलिए, थर्ड ट्रांजैक्शन। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट, फोर्थ। अब मैं न्यू इक्वेशन नहीं बना के बता रहा, ठीक है? मैंने आपको पहली बार समझा दिया। आप चाहें तो इसी को आगे फिर लाइन ड्रॉ करके न्यू इक्वेशन 70,000 आ जाएगा, 60 + 30 90 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 1,40,000 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, एज इट इज उतार लेना। क्लियर? बट हम नहीं कर रहे क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है इतना ज्यादा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? सैलरी पेड ₹2,000 एंड सैलरी ड्यू ₹1,000। ध्यान दीजिएगा, हमने पहले सैलरी पे की है 2,000 की। गुड। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन में आप देखेंगे कि हमने सैलरी पे की है 2, जो पे कर दिया इसका मतलब कैश के फॉर्म में पे किया गया। कोई भी एक्सपेंस, देखिए सैलरी इज अ एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस विच इज पेड इट ऑलवेज बी डिडक्टेड फ्रॉम बोथ कैश एंड कैपिटल। कोई भी एक्सपेंस हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो स्टेशनरी परचेज हो, कोई भी चीज एक्सपेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, टेलीफोन बिल हो, एनी एक्सपेंस विच आर पेड बाय द फर्म इट ऑलवेज बी डिडक्टेड फ्रॉम बोथ कैश एंड कैपिटल। अगर आप कैश में कोई भी एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो कैश से भी माइनस होगा और कैपिटल से भी माइनस होगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक। अब चलिए, यहां पे हमें क्या कह रहा है कि हमने एक एक्सपेंस पे किया। क्लियर? हमने क्या किया? एक एक्सपेंस सैलरी पे कर रहे हैं जो कि 2,000 रुपए की है, तो कैश में तो 2,000 रुपए पे किया गया। क्लियर? दूसरी चीज, 1,000 रुपए ड्यू है। चलिए, तो 1,000 रुपए ड्यू है, लेकिन वो 1,000 रुपए भी तो हमारा वो एक्सपेंस है। ड्यू मतलब क्या होता है? मींस सैलरी का आपको पे करना था लेकिन आपने पे नहीं किया, यानी आपको एम्प्लॉय से आपने काम करा लिया लेकिन उसको आपने सैलरी नहीं पे की, यानी एक्सपेंस तो किया है आपने बट पेमेंट नहीं किया, तो वो आपकी लायबिलिटी है ना, क्योंकि आपको इन फ्यूचर उसे पेमेंट करना होगा। क्लियर? तो यहां पे देखिए आप क्या करेंगे,
मैंने आपको बताया सारे के सारे एक्सपेंस कैपिटल में माइनस होते हैं। जैसे यहाँ पे कैश में से ये 2000 माइनस होगा, आपने कैश पेड किया। दूसरी ट्रांजैक्शन क्या होगी, ये आपका कैपिटल में से भी माइनस होगा। क्लियर? तो कैपिटल में 2000 तो माइनस होगा ही होगा, 1000 जो हमारा ड्यू है वो भी तो एक्सपेंस हुआ है, यानी इस महीने हमारा टोटल 3000 रुपए खर्च हुआ। तो यहां पे जब हम माइनस करेंगे तो 3000 माइनस करेंगे। क्लियर? आ गई बात समझ में? और बचा हुआ जो 1000 है जो कि ड्यू है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो इसलिए हमारा लायबिलिटी साइड में एक कॉलम बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। क्लियर? तो यहां पे हम एक कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का और उसमें हम 1000 रुपीज ऐड कर देंगे। क्लियर? यहां तक समझ में आया? चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो क्या कहता है, हमारी देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। किस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, कितना, 10%। वेरी गुड। तो देखिए 10% जो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, क्लियर, इसका बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है। देखिए ये कौन सी फर्म है, बेसिकली जो हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं ये हम प्रिपेयर करते हैं स्मॉल फर्म्स के लिए, छोटे बिजनेसेस के लिए। तो छोटे बिजनेस यानी सोल ट्रेड टाइप के बिजनेस होते हैं जिसमें ओनर ही सब कुछ होता है, हालांकि बिजनेस और ओनर दोनों अलग है। तो यहाँ पे जो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो ओनर ही को ही पे करना है और बिजनेस में ही से लेना है। ठीक है, यानी इसी से पैसा लेके इसी को पे करना है। तो देखिए इसमें करना क्या है, इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में मान के चलिए आपको 10% इंटरेस्ट का है, कैपिटल आपकी कितनी थी 1,40,000, भाई आपने इन्वेस्ट तो टोटल 1,40,000 किया था, 1,40,000 का आप 10% कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 14,000 आएगा। क्लियर? तो वो 14,000 आप यहां पे ऐड भी करेंगे और वही 14,000 आप यहां पे माइनस भी करेंगे। क्लियर? यानी कहने का मतलब है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो हम खुद ही पे करते हैं और खुद ही रिसीव करते हैं, इसलिए एक तरह से वो हमारे लिए, ओनर के लिए क्या है रिसिप्ट, फर्म के लिए क्या है एक्सपेंस, इसलिए एक्सपेंस के फॉर्म में माइनस हुआ है और रिसिप्ट के फॉर्म में वो ऐड भी हुआ है। क्लियर? क्योंकि वो जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कैपिटल को इंक्रीज भी कर रहा है, भाई इंटरेस्ट मिला कैपिटल में तो कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी ना, तो इसलिए प्लस हुआ। लेकिन वो कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कौन कर रहा है, फर्म ही पे कर रही है, तो फर्म के लिए क्या है एक्सपेंस, इसलिए वो माइनस भी हुआ। क्लियर? चलिए अब आते हैं हमारी सिक्स्थ ट्रांजेक्शन। देखिए सिक्स्थ ट्रांजेक्शन क्या कहता है, सिक्स्थ ट्रांजेक्शन कह रहा है कमीशन रिसीव्ड ₹2,500, कमीशन रिसीव हो रहा है 2,500 रुपए का। तो हमारा जो कमीशन रिसीव, कोई भी इनकम रिसीव हो, चाहे वो कमीशन रिसीव हो, रेंट रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, है ना, कोई भी इनकम रिसीव्ड होगी अगर कैश फॉर्म में है तो वो कैश में भी ऐड होगा और कैपिटल में भी ऐड होगा। इनकम इज ऑलवेज एडेड इन कैपिटल, और कैश में रिसीव हो रहा है तो कैश में भी ऐड होगा। क्लियर? तो देखिए सिक्स ट्रांजेक्शन में आपका 2,500 रुपए का कमीशन रिसीव है तो ये 2,500 रुपए कैश में भी ऐड होगा और यही 2,500 रुपए आपका कैपिटल में भी ऐड होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, समझ में आया? चलिए अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, गुड्स ₹3,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। मींस एक प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर रहा है, प्रोप्राइटर मींस ओनर, ओनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए किसी भी सामान को विड्रॉ करता है तो वो क्या होता है ड्रॉइंग। तो चाहे ओनर कैश की ड्रॉइंग करे चाहे गुड्स की, दोनों ही केस में वो दो जगह माइनस होगा, दोनों ही माइनस होगा। अगर गुड्स की ड्रॉइंग कर रहा है तो स्टॉक और कैपिटल दोनों से माइनस हो रहा है, लेकिन अगर कैश की ड्रॉइंग करता है तो कैश और कैपिटल दोनों से माइनस होगा, यानी कैपिटल से माइनस होना फिक्स है। अब बस डिपेंड कर रहा है, जैसे यहां पे इसने क्या कहा है गुड्स की ड्रॉइंग कर रहा है तो गुड्स मतलब स्टॉक। क्लियर? तो स्टॉक से माइनस हो जाएगा, कितना अमाउंट है हमारा 3,000 रुपीज, तो ये 3,000 रुपीज हमारा स्टॉक में से माइनस हो गया। क्लियर? लेकिन कैश किया नहीं, अगर कैश भी करता तो कैश में से भी माइनस होता। क्लियर? इसलिए ये अब कहां और कहां माइनस होगा, कैपिटल में। तो मैंने आपको क्या बताया, ड्रॉइंग कोई भी चीज की करे कैपिटल में से माइनस होना फिक्स है, अगर कैश की करेगा तो कैश में से, जैसे यहां पे गुड्स की किया है तो इसलिए स्टॉक में से माइनस हो रहा है। क्लियर? दो जगह से।
फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या कह रहा है, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड फॉर ₹45,000। क्या कह रहा है, गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 40,000 रुपए है, लेकिन सेल किया है 45,000 रुपए में, यानी हमको सेल करने में क्या हो रहा है, 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? तो देखिए यहां पे क्या करना है आपका, 8th ट्रांजेक्शन में गुड्स सेल किया, चलिए यहां पे कुछ मेंशन नहीं कि कैश है कि क्रेडिट है, इट मींस हम एज्यूम कर लेंगे कि कैश पे सेल किया है। क्लियर? किसी भी पर्सन का नाम नहीं दिया, क्रेडिट नहीं लिखा है, इट मींस कि कैश पे सेल किया है। क्लियर? तो जब कैश पे सेल किया तो हमने सेल किया 45,000 में, बट उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 40, यानी आपका जो स्टॉक गया है आपके पास से वो 40,000 का गया है। क्लियर? हमारे पास से स्टॉक जो माइनस हुआ है वो 40,000 का माइनस हुआ है, लेकिन कैश कितना आया है, 45,000 आया है। क्लियर? तो हमारे पास कैश आ रहा है 45,000, तो जो आ रहा है वो ऐड हो गया कैश में। हमारे पास से स्टॉक जा रहा है, जो हमने सेल किया, तो स्टॉक में से माइनस हो गया 40,000। क्लियर? हमेशा कॉस्ट प्राइस हम स्टॉक में से माइनस करेंगे और जिस प्राइस पे हम सेल करते हैं उसे हम कैश में ऐड कर लेंगे। क्लियर? चलिए अब ध्यान देते हैं कि भाई 40,000 की चीज हमने 45,000 में बेचा, तो हमें 5,000 का प्रॉफिट भी तो हुआ। ये जो 5,000 का प्रॉफिट है ये कहां जाएगा, ये हमारे लिए कहां जाएगा, कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कोई भी इनकम हो, प्रॉफिट हो, गेन हो, वो कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 9th ट्रांजेक्शन। 9th ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹500। ड्रॉइंग पे भी इंटरेस्ट है 500 रुपए का। अगर 500 रुपीज का आपका ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट है तो देखिए सेम ट्रीटमेंट है, जैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का ही है। क्यों? क्योंकि ओनर ही कर रहा है ड्रॉइंग। ठीक, अब ड्रॉइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो फर्म के लिए क्या है, इनकम, बट पार्टनर के लिए क्या है, मेंबर यानी ओनर के लिए क्या है, एक्सपेंस। क्लियर? तो एक तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्या होगा, फर्म को इनकम होगी, बट वो काटेगा कहां, जो ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की उसी में से डिडक्ट करेगा। क्लियर? तो फर्म को इनकम तो हुई, लेकिन उसी की कैपिटल में से वो माइनस भी कर देगा, तो क्या होगा, एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। क्लियर? तो इस केस में भी हमारा क्या होगा, 500 पहले हमें क्या करना है, प्लस करना है, और फिर 500 रुपीज हमें माइनस करना है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹500। 500 रुपीज का हमारा एक्रूड इंटरेस्ट है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हमने कोई इन्वेस्टमेंट की थी, उस पर हमें 500 रुपए का इंटरेस्ट हुआ है, अर्निंग हुई है, बट वो हमें रिसीव नहीं हुआ है। क्लियर? तो अर्निंग हुई बट रिसीव नहीं हुआ, तो उस केस में क्या है भाई, वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स। कोई भी अर्निंग अगर हमें हुई हो और वो रिसीव ना हुई हो तो हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स। तो पहली चीज, एसेट्स में हमारा एक्रूड इंटरेस्ट का हम एक कॉलम बनाएंगे प्रॉपरली। क्लियर? ठीक है, तो 10th ट्रांजेक्शन में देखिए हम क्या करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट है, इनकम हुई है, तो चलिए हुई है तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे 500 रुपए प्लस, बट अभी रिसीव नहीं है इसलिए हम उसे एसेट्स में एक अलग से कॉलम बनाएंगे एक्रूड इंटरेस्ट का, और उसमें हम उसे ऐड कर देंगे। कैश के फॉर्म में तो आया नहीं है इसलिए हम कैश में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए क्या कह रहा है, गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 sold at a profit of 33.1/3%, 50% amount received in cash। कहने का मतलब है हमने गुड्स जो सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस 30,000 है। तो पहली चीज तो ये ध्यान दीजिए कि आपका जो ट्रांजेक्शन है 11th, उसमें जो आप गुड्स सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट प्राइस 30,000 है, यानी हमारे पास से जो स्टॉक गया है वो 30,000 का है। तो 30,000 आप माइनस कर देंगे, ब्रैकेट का मतलब क्या है, माइनस, तो ये माइनस कर देंगे आप। क्लियर? फिर उसके बाद अब उस पर कह रहा है 33.1/3% का प्रॉफिट है, तो जब भी आपको 33.1/3% कह दे इसका मतलब है वो सीधा सीधा कह रहा है 1/3 है प्रॉफिट आपका, उसमें बहुत ज्यादा 33/1/3/100 करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसका 1/3 निकाल लीजिए। तो अगर आप 30,000 का 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा,
अगर हम 30,000 का 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आएगा। यानी हमें 30,000 की कॉस्ट प्राइस पे हमें 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? तो चलिए, हमें पता है कि जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड होता है। कहाँ ऐड होता है? कैपिटल में। तो हमने कैपिटल में 10,000 ऐड कर दिया। क्लियर? अब जाहिर सी बात है 10,000 हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, तो इस सेल हमने कितने में किया होगा? 40,000 रुपीज में। 30,000 की कॉस्ट प्राइस, 10,000 का प्रॉफिट, तो इन दोनों का आप टोटल कर लोगे, कितना होगा? 40,000 रुपीज पे आपने सेल किया। अब क्या कह रहा है? 50% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। क्या कह रहा है? जिसमें से 50% अमाउंट ही कैश में रिसीव हुआ है, यानी बाकी अमाउंट क्या हो गया? क्रेडिट पे सेल किया गया। आ गई बात समझ में? बाकी का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ। तो 40,000 रुपए की टोटल सेलिंग प्राइस आ रही है। 30 प्लस 10, 40,000। 40,000 का 50% कितना होगा? 20,000। यानी 20,000 हमें कैश में रिसीव हुआ, इसलिए हम कैश में ऐड कर देंगे 20,000। क्लियर? और जो बचा हुआ 20,000 जो हमने क्रेडिट पे सेल किया है, तो जब भी हम किसी भी पर्सन को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो पर्सन फर्म के लिए क्या होता है? डेटर। तो डेटर से हमें इन फ्यूचर पैसा लेना होता है, इसलिए वो हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। क्लियर? तो एसेट्स के कॉलम में हम डेटर में डाल देंगे कितना? 20,000। क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट? तो ये हो गया हमारा डेटर। क्लियर? चलिए, तो ये थी हमारी ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब एक ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर रुपीज 57,000 इन फुल सेटलमेंट। यानी क्रेडिटर को हम पेमेंट कर रहे हैं 57,000 रुपीज, वो भी कैसे? फुल सेटलमेंट में। ठीक है? तो जब भी आपको फुल सेटलमेंट वर्ड दे दे तो देखिए वहां पे क्या ट्रीटमेंट करना है। क्लियर? तो देखिए, पहली चीज 12th ट्रांजेक्शन कि हमने क्या किया? पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, कितने का? 57,000 का। तो कैश में पेमेंट करेंगे, तो कैश में से माइनस हुआ 57,000। बट आपका जो क्रेडिटर है इसको हम फुल सेटल कर रहे हैं। फुल सेटलमेंट मतलब हम इसके अकाउंट को फाइनली क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने का मतलब हमारी तरफ से हमने इसे पूरा 60,000 दे दिया। क्लियर? आ गई बात समझ में? मीन्स हम उससे कह रहे हैं भैया आपके 60,000 देने थे, ऐसे 57 ले लो और मामला रफा दफा करो, मीन्स खत्म करो, अब हम आपको कुछ नहीं देंगे और आपका अकाउंट क्लोज। तो कहने का मतलब हमने उसको 60,000 से पूरा क्लोज कर दिया। तो बाकी बचा हमें 3,000 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं? हमें देना था 60,000, हमने दिया कितना? 57,000। तो 3,000 का हमें क्या हुआ? गेन हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। तो वो प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल में ऐड होगा। तो हम कैपिटल में ये 3,000 ऐड कर देंगे। क्लियर? समझ में आया? चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं एक और ट्रांजैक्शन जो कि लास्ट है हमारे लिए। वो क्या कह रहा है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है मशीन पे, तो देखिए उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। देखिए 13th ट्रांजैक्शन, हमने क्या कहा? मशीन पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। मशीन कितने की है? 40,000 की। क्लियर? 40,000 की मशीन है। 40,000 का 10%, 10% डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? किसी भी एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करना। डेप्रिसिएशन का मतलब किसी भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो 40,000 का आप 10% कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा? 4,000। 40,000 इंटू 10/100 करेंगे तो 4,000 आ जाएगा। तो ये 4,000 जो आपका डेप्रिसिएशन है, ये मशीन की वैल्यू को डिक्रीज करेगा। तो मशीन की वैल्यू में से हम 4,000 रुपीज माइनस कर देंगे, और ये 4,000 फर्म के लिए क्या है? लॉस है। भाई डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इट मींस कि फर्म के लिए क्या है? लॉस। और लॉस कहां जाता है? आपका कैपिटल में भी माइनस होता है। क्लियर? तो इसको हम माइनस कर देंगे। क्लियर है यहाँ पे? तो ये थी हमारी कुछ ट्रांजेक्शन। आई होप सो अगर आपको ये ट्रांजेक्शन समझ में आ गई है तो आप अकाउंटिंग क्वेश्चन से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लियर? कि किस ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉब्लम है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, अवश्य दूंगा। क्लियर? तो प्लीज, अब देखिए यहां तक तो हम कर चुके, अब हमें करना कुछ नहीं है। इसको टोटल करके यहां लिख लेंगे एंड में, इसका टोटल यहां एंड में लिख लेंगे, इसका जो भी माइनस करके आएगा 40,000 माइनस 4,000 कितना आ जाएगा? 36,000। इसका 20,000 आएगा, इसका 500 आएगा, इसका हम पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। क्रेडिटर हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि 60 था, माइनस हो गया,
1000, इसका 1000 रहेगा। फिर हम टोटल कर लेंगे, फिर जो भी इस साइड का, इन सब का जो भी टोटल आएगा, क्लियर, इन सब का जो टोटल है वो इक्वल्स टू इन दोनों के टोटल के आना चाहिए। क्लियर, मींस इसका जो आएगा इसका सम करेंगे, ये इसका सम करेंगे, फिर इसका सम करेंगे, क्लियर, फिर इसका सम, तो इन सब का हम टोटल कर लेंगे, वो इसके सब के टोटल के इक्वल आना चाहिए। क्लियर, तब आपका अकाउंटिंग इक्वेशन 100% करेक्ट है। क्लियर, तो ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड